Very good morning to my dear students. Here we have disclaimer with us. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Yes, very good morning, Bansi, and welcome, Disha. As a part of our fifth module, that is success and failure stories, today I'm going to show you the video of Elon Musk. Again, it's by Vivek Bindra only, but he has done nice calculations in his own way. So I'm going to share the screen with you. In Vivek Bindra, you will find that he has done really very nice analysis of the facts and figures. Elon Musk is a person in a very layman language. We can say that We believe that people we can say that he succeed, he failed, and he bounced back like anything. The way he bounced back, it's really tremendous. Today we are going to talk about two personality. The first one is Elon Musk, or we can say the Elon Musk, and the second one is Jeff Bezos. We are going to discuss about these two personality. Please be online. Let me share the screen with you. One, two, three, four, five. You please enjoy this video. Listen all the words very carefully. Once we're done with this, we'll have interaction, or you can say the question answer for the same. Because the questions will be there in your exam. It will be open-ended question.
It can be related to the any businessman that we have discussed or we may not discuss. But accordingly, your fifth module is consisting of success and failure stories of the businessman. So we are going to discuss all those things, and the questions will be there. Maybe open-ended, maybe close-ended, or even the question will be like this. According to you, who is your favorite businessman? Why? And you have to write down the answers. And that answer should be in detailed form, because अब आपकी एग्जाम जो होगी वो ऑफलाइन ही होगी. सभी स्कूल्स जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो योर दिस ईयर्स एग्जाम, दिस सेमेस्टर एग्जाम विल बी इन ऑफलाइन मोड ओनली. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम जेफ बेजोस? What you should learn from him as far as the current business scenario is concerned? Question might be like this in your exam. Do you think that whatever the strategy has been decided, or you can say whatever the actions has been taken by Elon Musk is fruitful? If yes, discuss why, and many more. But yes, open-ended questions will be there, maybe of 16 marks to 24 marks. Got it? समझ गए आप लोग? Okay, so I'm going to start the video. You please watch it out. And in between, we can have discussion. आप सबका फिर से स्वागत है. मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच. आज बात करूंगा इलॉन मस्क की. इलॉन मस्क है कौन? फार साइटेड, फ्यूचरिस्टिक, बैरियर फ्री थिंकिंग रखने वाले एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न कनेडियन अमेरिकन, एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न इलॉन मस्क की. इलॉन मस्क है कौन? फार साइटेड, फ्यूचरिस्टिक, बैरियर फ्री. See, this is what we can write if the question is related to Elon Musk. That what are the competencies that you find in Elon Musk? Then you can write this: far-sighted, futuristics, and barrier-free thinking. Class, are you there? Unmute yourself and answer. Yes, sir. Yeah, okay, thank you. So you may answer like this. So please watch this video very carefully. थिंकिंग रखने वाले एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न कनेडियन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट है. ये इलॉन मस्क जैसे लोग सदी में दो चार ही पैदा होते हैं. लगभग 100 साल में दो चार लोग ऐसे पैदा होते हैं. इलॉन मस्क वो लोग हैं जो फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं, एनविजन करके. बचपन से ही 10 साल की उम्र में ही वो इतनी किताबें पढ़ लिए थे जो एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता. 12 साल की उम्र में घर में पड़े पड़े एक कंप्यूटर से उन्होंने एक गेम बना डाला, और उस गेम को उन्होंने $500 के अंदर पहली दफा एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया. बचपन से ही उनका ज्यादा फोकस था कि प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोल्यूशन ढूंढना. लुकिंग फॉर द सोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. वो क्या कहते थे? एक ही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन ढूंढना बड़ी प्रॉब्लम है. तो उनकी कंपनी के अंदर अगर आके कोई ये बोल देना कि सर ये हो नहीं सकता, तो वो उसकी कंपनी में उसका आखिरी दिन होता था. वो क्या कहते थे? होगा, जरूर होगा, सोचो कैसे होगा. उनका मानना क्या है? फेलियर इज द ऑप्शन. दुनिया बोलती है फेलियर इज नॉट द ऑप्शन. ये मैंने पहले व्यक्ति देखे जिसका मैंने बिजनेस, एक्चुअली मैं थॉट प्रोसेस इलॉन मस्क का जानना चाहता था. आप में से कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा ना कि इलॉन मस्क की केस स्टडी दीजिए. ये एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है. ये वो व्यक्ति हैं जो पृथ्वी के लिए जीवित रहना चाहते हैं. इन्होंने सोलर सिटी बनाई,
जो कि सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है। हाँ, सोलर सिटी सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है। इन्होंने टेस्ला मोटर बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन पे काम करती है कि एनर्जी भी पेट्रोल डीजल का चक्कर ही खत्म हो जाए, पोल्यूशन फ्री हो जाए पृथ्वी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्राइवरलेस कार्स। एक्चुअली पैरानॉइड व्यक्ति जो केवल हाई क्लास प्रोडक्ट बनाने पे फोकस किया, शुरू से शुरू करते हैं। आज जो कि ये पृथ्वी पे 21वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं, ये सेल्फ टॉट प्रोग्रामर है और रॉकेट साइंटिस्ट है। इन्होंने रॉकेट साइंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, किताबों को पढ़ पढ़ के इन्होंने पूरे रॉकेट साइंस को समझ लिया। बचपन में किताबी कीड़े थे, किताबें पढ़ पढ़ के इन्होंने बचपन में ही एक डीप विजन, एक ऑब्सेशन, परसिस्टेंस क्रिएट कर लिया पृथ्वी को बदलने के लिए। ये कहते हैं ग्रेट लीडर डोंट ट्राई टू फोर्स अ स्क्वायर पेग इनटू अ राउंड होल। वो क्या कहते हैं, स्क्वायर को राउंड में घुसाने की कोशिश नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी हाई परफॉर्मेंस टीम को बिल्ड करते हुए उनकी कोर इनर स्ट्रेंथ को पहचानता है। इसका अर्थ क्या हुआ, कभी भी मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाते, पेड़ पे बंदर को चढ़ाते हैं, बंदर अपने आप चढ़ जाएगा, मछली जिंदगी भर मेहनत करने पे भी नहीं चढ़ेगी। इनका मानना है कि अगर असाधारण काम कराना है टीम से तो टीम पावरफुल होनी जरूरी है। पहली बार में सही आदमी हायर करो। मीडियोकर आदमी जब उससे रिजल्ट अचीव नहीं होता तो वो ये मान लेता है रिजल्ट अचीव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हो नहीं सकता था, लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कहते हैं नहीं हुआ से कोई मतलब नहीं, रिजल्ट तो अचीव करना है, तरीके अलग अलग अपना लो। गोल को नहीं बदलना, तरीके बदलने हैं। गोल नहीं बदलना, स्ट्रैटेजी बदलनी है। पूरा बचपन 10-10, 12-12, 15-15 घंटे अकेले घर में बैठ के पढ़ पढ़ के इन्होंने निकाल दिए। जिंदगी भर 7 दिन काम किया, एक दिन में 15-15 घंटे काम किया। अपने आप से अनरीजनेबल, अनकॉम्प्रोमाइजेबल एक्सपेक्टेशन रखते थे। अपने आप से वो एक्सपेक्ट करते थे जो कोई नहीं कर सकता। ये क्या कहते थे, मुझे वो नहीं करना जो किया जा सकता है, मुझे वो करना है जो करना चाहिए। ये नहीं बोलते आई डोंट एक्सपेक्ट टू डू व्हाट इज पॉसिबल, I want to do what is needed to be done। इनकी वर्ल्ड क्लास कंपनीज की लिस्ट में Zip2, X.com, PayPal, SpaceX, Tesla, सोलर सिटी, हाइपरलूप, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, जिनमें से स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी की चर्चा और हाइपरलूप की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। ये कहते थे मैं मंगल ग्रह पर लोगों को भेजूंगा, मंगल ग्रह पे जीवन चालू कर दूंगा, एक एक करके आता हूं। 95 में अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर इन्होंने Zip2 की शुरुआत करी और ये Zip2 में इनको जल्दी ही फंडिंग भी मिल गई। शुरू में अपने पिता के पैसे से किया, बाद में एक्सटर्नल फंडिंग मिली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ते चले गए और आगे चल के क्योंकि अभी ये यंग थे, इनका एक्सपीरियंस उतना बड़ा था नहीं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा यार ये आदमी सीईओ बनने के लायक नहीं, उसको सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया। एनीवेज बाद में टेक बबल, आपको पता है सन 2000 से पहले 99 में ये फटने की कगार पे था, तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर सोचा इस कंपनी को बेच देते हैं। कॉम्पैक्ट को वो कंपनी बेच दी गई, जहां से जो पैसा मिला उसमें इनका 7% इक्विटी था, जिसमें इनको $22 मिलियन तुरंत मिला। और वो $22 मिलियन ये घर में रख करके रईस आदमी की तरह घूम सकते थे, छोटे थे, यंग थे, लेकिन वो पूरे $22 मिलियन एक एक करके इन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और तुरंत चालू करी X.com। ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी, अपने आप में पहली ऐसी कंपनी दुनिया भर में। आगे चल के कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ इसका क्लैश हुआ, लेकिन उसी समय दोनों कंपनी मर्ज हो गई और उसका नाम पड़ गया पेपैल। क्या आप जानते हैं पेपैल दुनिया भर में आज पेपैल फेमस है। उसको किसने स्टार्ट किया, उसको किसने बड़ा रूप दिया, वो इलॉन मस्क ही थे। उनका जो सीटीओ था ना, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उसके साथ इनकी बहसबाजी हो गई। ये सीईओ थे, वो सीटीओ थे, और बहस ऐसा हुआ कि वो सोच रहे थे कि लाइनेक्स पे रखें इसको कि विंडोज पे लेके जाएं, और उस बहस के चक्कर में सीटीओ ने बाकी बोर्ड को अपने साथ लिया। ये भाई साहब की अभी नई शादी हुई थी इलॉन मस्क की, ये गए हुए थे हनीमून पे, पीछे से उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया और सीईओ की पोजीशन से बाहर कर दिया। बहरहाल उस कंपनी से भी बाहर हुए ये, लेकिन तब बाहर होते वक्त इनका शेयर बहुत बड़ा हो चुका था। $165 मिलियन लेके बाहर निकले तो रुके नहीं। अब क्या सोचे, मुझे लगता है कि मंगल ग्रह पे जीवन होना चाहिए। ये सोचे मंगल ग्रह पे पेड़ पौधे उगाऊंगा, उसके बाद लोगों को बसाऊंगा, पूरा जीवन बसाऊंगा। ये रशिया गए, रशिया जाके उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे रॉकेट्स का अरेंजमेंट किया जाए कि जिससे मैं मंगल ग्रह जा सकूं। उन्होंने इनको प्रपोजल दिया कि $8 मिलियन लगेगा। अब ये सोचने लगे यार $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है। ये रशिया में काफी नेगोशिएट करने की कोशिश जब की तो उनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। ये वापस आ, ये उसने जो रॉकेट बनाया है वो अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, अब तक की। इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैनकाइंड। रीयूजेबल रॉकेट्स जो अब तक किसी ने नहीं बनाया। वापस आके सोचे क्यों ना मैं ये कंपनी खुद ही बना दूं, तो पढ़ने लग गए। अपने आप पढ़ पढ़ के इन्होंने अपने आप उसी समय स्पेसएक्स
कंपनी फाउंड करी। जिस प्रकार हेनरी फोर्ड ने कमर्शियली वायबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्रिएट करी, उससे पहले गाड़ियां बड़ी महंगी बनती थी, हेनरी फोर्ड ने तो कमर्शियली वायबल बनाने के लिए बड़ा एक असेंबली लाइन बना दिया। बोले जैसे हेनरी फोर्ड ने तो कमर्शियली वायबल किया, तो मैं स्पेस ट्रैवल को कमर्शियली वायबल क्यों नहीं कर सकता? $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है एक रॉकेट का। तो ये सोचने लगे कुछ ऐसा किया जाए कि रीयूजेबल रॉकेट तैयार किए जाए। तो रॉकेट साइंस की इनको पढ़ाई इन्होंने फॉर्मली तो नहीं करी थी, लेकिन इससे पता चलता है कि एक आदमी नेट को खोल के या किताबों को खोल के या एनसाइक्लोपीडिया को खोल के किताबों को पढ़ के खुद भी सीख सकता है, और वो इन्होंने किया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रैवल को रीडिजाइन कर देगा, इसका किसी को विश्वास नहीं हुआ। कोई नहीं बोला कि मैं इसकी मदद करने, कोई नहीं आया। एक्चुअली मुद्दा ये नहीं था कि रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है, एक्चुअली मुद्दा ये था कि लो कॉस्ट में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है और उसी रॉकेट को फिर वापस भी लेके आना है उसको रीयूज करने के लिए। और वहीं जब इन्होंने पहला लॉन्च किया, इनके इंजन में आग लग गई, और वो अर्ली आग लगी, वहां से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, दूसरी बार फिर ट्राई किया, दूसरी बार इनका जो रॉकेट था वो स्पेस में गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंचा, फिर ऑफ रूट हो गया, और तीसरी बार स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। 3 बार में इनका इतना नुकसान हुआ, जितना भी पैसा इनको मिला था, पीछे जो इनको मिला था ना पेपैल से, जब पैसा आया था इनको बाहर निकाला गया था, तो वो सारा पैसा इन्होंने डाल दिया, लेकिन तीनों बार में पैसा खत्म हो गया। फंडिंग एजेंसी से खत्म हो गया, नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो पैसा भी गया। अब इन्वेस्टर बोले अब कुछ नहीं बचा, अब तो कंपनी खत्म। लेकिन ये बोले एक ट्राई और करूंगा, एक ट्राई और करूंगा। क्या क्रेजी आदमी थे। 3 बार फेल हुए, नियरली वेंट बैंकरप्ट, घर भी बेच दिया, सब बेच दिया था, बट अगेन ही बाउंस बैक लाइक एनीथिंग। He made a crazy announcement कि चौथा लॉन्च थोड़े ही महीनों में करने वाला हूं। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में इतने छोटे छोटे गैप पे कोई लॉन्च नहीं करता, पर ये छोटी उम्र के अंदर ही बहुत बड़े, इनका रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ा था और अपना सब कुछ दांव पे लगाने। This is what you can write, the highest risk appetite. को तैयार थे, अपना घर मकान बेच के किराए पे शिफ्ट हो गए, सबके कर्जे लेकर के आखिरी बार ट्राई किया, और इस बार न केवल सफल हुए बल्कि $1.5 बिलियन का नासा से एक प्रोजेक्ट भी ले लिया, और नासा ने अब इनको फंड किया, बोला आप हमारे लिए काम करिए। आप जानते हैं हमारा इसरो और नासा ये सरकारी पैसे पे काम करते हैं, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट सरकारी पैसे के बिना उन्होंने प्राइवेट दम पे, बिना फॉर्मल पढ़ाई के, अपने आप किताबें खोल के पढ़ पढ़ के खुद ही कर डाला। ऐसा पैरानॉइड विजन अपने प्रोडक्ट और अपने क्राफ्ट को अचीव करने के पीछे ऑब्सेशन। देखिए, यही मैं आज अपने देश में देना चाहता हूं मैसेज। हमारे देश में भी ऐसे कई लोग खड़े होंगे जो इन वीडियोस को देख रहे हैं। आज ये नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट, कार्गो और सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं और रीयूजेबल प्रोजेक्ट बना दिया। अभी इसके साथ साथ इन्होंने, अभी चल ही रहा था, ये टेस्ला मोटर में भी पैसा डाल दिया। ये टेस्ला मोटर में पैसा इन्वेस्ट किए, उनकी कंपनी में घुस गए और पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए। जल्दी ही इनको कंपनी का सीईओ भी घोषित कर दिया गया, और इन्होंने टेस्ला को लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के विजन को तैयार किया। जो पहली गाड़ी बनी वो अपनी कॉस्ट से डबल कॉस्ट पे चली गई, $1,09,000 की गाड़ी बनी। एक्चुअली सोच रहे थे शुरू में कि $50,000 में बन जाएगी, लेकिन जब बनाने लगे तो उसकी कॉस्ट डबल हो गई, गाड़ी बिकी नहीं, बिकने में बहुत दिक्कत आई। दूसरी बार कॉस्ट थोड़ी कम हुई, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में रीजनेबल कॉस्ट आ गई, जिससे इनकी बिक्री बहुत तेज हुई। यानी कि स्पेसएक्स में कई फेलियर आए, उससे पहले x.com में, पेपैल के टाइम पे पहले भी इनको निकाल दिया गया, उसके बाद इधर भी इन्होंने चालू किया तो इधर भी इनके कंटिन्यूअस फेलियर आते रहे। वो जो टेस्ला थी, ये जिधर गए, ये क्या बोलते हैं, फेलियर इज एन ऑप्शन। कम ऑन, क्या फेलियर इज एन ऑप्शन, लेकिन यू गॉट टू बाउंस बैक। कम ऑन, यू गॉट टू बाउंस बैक। याद रखिए, इलॉन मस्क अपने आप में केस स्टडी है, आर्ट ऑफ फेलिंग सक्सेसफुली। कम ऑन, क्या आर्ट ऑफ फेलिंग सक्सेसफुली। आज $20 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्क, दुनिया के 50 सबसे पैसे वाले अरबपतियों में इनका नाम आता है। दुनिया भर में इनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो गया, भारत भी आ रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर के, उसकी तैयारी हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात भी हुई, और आप तो जानते भी हैं आज हमारे देश में पेट्रोल डीजल गाड़ियां हटाने की पूरी तैयारी की जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने के लिए। ड्राइवरलेस पावरफुल गाड़ियां बना रहे हैं आज इलॉन मस्क, दुनिया भर में छा गए हैं। फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर ओरिएंटेड, बैरियर फ्री थिंकिंग, ये जो ढक्कन लगा ना बैरियर, वही सबकी समस्या। आप आज एक बात कहना चाहता हूं, कुछ भी भूल जाना जिंदगी में, ये बाउंस बैक को मत भूल। Are you there, class? Yes, sir. Yeah, okay, good. So, not only this, but उसका जो मेन अनदर एक इनोवेशन जो है हाइपरलूप, दुबई की गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एग्रेसिवली काम कर रही है।
एंड यू वोंट बिलीव, बट यस, हमारे इंडिया में भी मुंबई से गोवा हाइपरलूप का प्लानिंग हो रहा है. शायद अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट यस, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द सेम. मुंबई टू गोवा हाइपरलूप विद इन 50 मिनट्स. आप मुंबई से गोवा जो है वो 50 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, जो ट्रेन में आपको पहुंचने में शायद 12 से 14 घंटे लगते हैं. फ्लाइट में भी आपको अप्रोक्स 50 मिनट्स का टाइम लगता है. नाउ विद द हेल्प ऑफ हाइपरलूप वो 50 मिनट्स में पॉसिबल है. An innovation by Elon Musk. This is what we exactly say as and when we talk about the entrepreneur and innovation. This is how actually it took place. The great innovation. And that matters a lot. आप सोसाइटी की नीड क्या है? पीपल वांट टू ट्रैवल इन स्पीड, पीपल वांट टू सेव देयर टाइम. First Henry Ford car, then later on bikes, car, bike, planes and trains, and nowadays hyperloop. You see, a few companies are working on drone planes. ड्रोन जो होते हैं उसको थोड़ा बड़ा करके उसमें 2-3 लोगों का सेटिंग करके ऑटोमेटिक वो टेक ऑफ एंड लैंडिंग करेगा, जिसकी स्पीड नो डाउट थोड़ी कम होगी, प्लेन जितनी नहीं होगी. बट देन ऑल्सो राजकोट के एक बिजनेसमैन जो है वो प्लानिंग कर रहे थे कि भाई ऐसे ड्रोन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके राजकोट से अहमदाबाद की फ्लाइट या फिर ड्रोन जो है वो स्टार्ट किया जाए. इट विल टेक ओनली 50 मिनट्स. 50 मिनट्स में आपको अहमदाबाद में पहुंचा देंगे. आप वाया बस जाओगे तो 4.5-5 घंटे होते हैं. People are ready to spend if they feel कि your product or services is worth or value for money. Then they are ready to spend. They don't have any issues to spend. If we talk about the Singapore Airlines, the business class of Singapore Airlines cost more than 1 lakh rupees. But then also people are ready to spend. अगर आप फ्री हो कभी तो देख लेना सिंगापुर एयरलाइंस का बिजनेस क्लास का वीडियो एक आपको मिल जाएगा, काफी सारे होंगे, तो यू कैन चेक इट आउट. When exactly entrepreneur is able to deliver satisfaction of the goods or services that he has sold, and customer feel that yes, it's worthy, it's value for money, then he can rise. अर्ली 2000 में एसएमएस जो था वो चार्जेबल था, टेक्स्ट एसएमएस. तब व्हाट्सएप और ये सब नहीं था. उस टाइम पे वे टू एसएमएस करके एक वेबसाइट बनाई थी कुछ बच्चों मतलब इंजीनियर्स ने और सब ने मिलके, एमसीए वाले स्टूडेंट्स थे, उन सब ने मिलके बनाई थी, जहां से आप फ्री मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते थे. तो इट वाज गुड इनफ, अच्छा चला. बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ दिस नेट कनेक्टिविटीज एंड ऑल दोस थिंग्स वो इतना मतलब बंद हो गया, ऑलमोस्ट बंद हो गया. बिकॉज वहां पे पहले इनोवेशन था बट रैपिड इनोवेशन नहीं था. एक बार इनोवेशन कर दिया, लोग सोच रहे थे कि वाह बढ़िया है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन, बट आपके कंपटीटर्स भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे ना इनोवेटिव लाने का. दूसरा इनोवेशन हुआ और ये कंपनी मार्केट में से आउट हो गई. एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, askme.com, ये कंपनी भी मार्केट में से आउट हो गई. ऐसी तो n नंबर ऑफ कंपनीज है जो मार्केट में से आउट हो रही है. दैट वी नीड टू लुक आफ्टर, दैट वी नीड टू सी. नाउ अनदर वीडियो इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सक्सेस स्टोरी ऑफ जेफ बेजोस. वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसा वाला है, प्लस माइनस 1-2 नंबर आगे पीछे होता रहता है. बट अगर आप डेली के $1,80,000 अर्न करते हो सिंस द जीसस बर्थ डेट, देन ऑल्सो आप उसको बीट नहीं कर पाओगे. उसके पास इतना पैसा है. अब कहां से आया? एंड हाउ अ पर्सन कैन अर्न दिस मच विद इन अ शॉर्टर टाइम पीरियड? लेट्स चेक इट आउट.
Do you want to discuss anything related to Elon Musk? Then the lines are open. We can have discussion. Okay, we'll move to the next one. Want to learn digital marketing? See, this is the new one, Udemy. You see how rapid innovations are there, how the company is trying to identify the need of the customers and up to which extreme they are trying to fulfill it out. The best example, Udemy, Byju's. But worried about how to get started? Udemy makes it incredibly easy. Now you can learn digital marketing with in-depth online courses that teach you the secrets of marketing on Google, Facebook and more to get you practicing immediately. चाहे जॉब लेनी हो, करियर चेंज करना हो या कुछ नया सीखना हो, Udemy has everything to offer. With thousands of courses taught by industry experts, Udemy offers the latest courses on all the skills you need, always at affordable prices. अब सिर्फ एक बार एनरोल करो और फिर लाइफ टाइम एक्सेस करो. Click now for a limited time discount and start learning today. कोच आज आपको शेयर करूंगा जेफ बेजोस के बारे में. पिछली बार जब मैंने आपसे चर्चा किया था इलॉन मस्क के बारे में, कौन सबसे क्रांतिकारी आदमी, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा ना, इसकी केस स्टडी बनाओ, उसकी बनाओ, इसकी बनाओ, उसकी बनाओ. काफी लोगों ने जेफ बेजोस की बात करी. जेफ बेजोस आज पृथ्वी पे सबसे रईस आदमी बन चुके हैं. पहले सेंटी बिलियनियर, क्या क्या बोला मैंने, सेंटी बिलियनियर. क्या होता है सेंटी बिलियनियर? जिसने बिलियनियर की सेंचुरी मार दी हो, है जी, 100 से ज्यादा. देखिए 100 का आंकड़ा पार करने वाले यानी कि 112 बिलियन डॉलर पर्सनल नेटवर्थ. नंबर 2 पे है बिल गेट्स 90 बिलियन डॉलर, वॉरेन बफेट 84 बिलियन डॉलर, बर्नार्ड आर्नोल्ड 72 बिलियन डॉलर, 5वें नंबर पे आपके हमारे मार्क जुकरबर्ग 71 बिलियन डॉलर. जेफ बेजोस की इतनी बड़ी पर्सनल नेटवर्थ है यानी कि 125 देशों की, लगभग छोटे बड़े मिला के 125 देशों की जीडीपी को जोड़ लो, उससे ज्यादा पर्सनल नेटवर्थ अकेले जेफ बेजोस की है. एक आदमी इतना बुद्धिमान और इतना पैसा जमीन के गैराज से चालू करके कैसे कमा जाता है? क्या आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा घुमा फिरा के देखिएगा. 10 बातें बताऊंगा जेफ बेजोस के जीवन से जिसने उसको जमीन से उठाया और पृथ्वी में सबसे बड़े गैप से सबसे बड़ा रईस व्यक्ति बना दिया. तो कुछ तो ऐसी स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट, थॉट प्रोसेस होगा. पूरा वीडियो देखिए. एक्चुअली जेफ बेजोस टाइमली अच्छे प्रोडक्ट बिल्ड करते चले गए, नई नई कंपनी खरीदते चले गए. कुछ कंपनी अपना पर्सनल पैसा इन्वेस्ट करते चले गए जिससे उनकी नेटवर्क भी बढ़ती चली गई. कुछ कंपनी जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उनमें से कौन सी है? गूगल, और है उबर, बिजनेस इंसाइडर, ट्विटर, वर्कडे, ग्रेल और लुकआउट. और अमेजॉन ने इन्वेस्टमेंट किया homegrocer.com, बैंक बाजार, easybar.com, wine.com. कुछ वो कंपनी जो अमेजॉन ने खरीद ली वो है होल फूड, ट्विच, ऑडिबल, ज़ेपॉस, IMDb, वॉशिंगटन पोस्ट, ये अखबार है सबसे पॉपुलर यूएस का, और गुडरीड्स. ऐसा सब करते हुए अमेजॉन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट वैल्यूएशन वो सबसे बड़ी कंपनी में हो गया पृथ्वी में, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी मार्केट वैल्यूएशन साइज से कंपनी बन गई है. वर्ल्ड नंबर 2, 763 बिलियन डॉलर. और कैपिटलाइजेशन के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से नंबर 1 कंपनी पृथ्वी पे एप्पल है, 910 बिलियन डॉलर. देखिए इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल है. यही कारण है कि एप्पल, गूगल, अमेजॉन पूरी दुनिया पे छा गए हैं. इसकी जीवनी शुरू करने से पहले क्या क्या सर्विसेज तक आज ये कंपनी पहुंच गई है, थोड़ा शायद आप उसके बारे में भी जानना चाहें. रिटेल गुड्स, अमेजॉन प्राइम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कंटेंट जो कि अमेजॉन गेम्स हैं, अमेजॉन वीडियो, म्यूजिक, अमेजॉन गो, अमेजॉन किंडल, अमेजॉन वेब सर्विसेज, अमेजॉन वायरलेस. इतनी ग्रोथ देखने वाले जेफ बेजोस, इनका जन्म हुआ था जनवरी के महीने में 1964 में. और जब इनका जन्म हुआ तब इनकी माँ की उम्र केवल 17 साल थी. उससे मैं वो स्कूल में पढ़ती थी. माँ जल्दी गर्भवती हो गई तभी इनका जन्म हुआ. और लेकिन जन्म में के बाद शुरुआत से ही ये पढ़ते लिखते बहुत जल्दी कम उम्र के अंदर एक
मर्चेंट बैंकिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन तक पहुंच गए थे अर्ली 90s के अंदर, जब इन्होंने सोचा कि .com का बूम आने वाला है, इंटरनेट का बूम आने वाला है, आगे जमाना बदलने वाला है, ये बैंकिंग चलती रहेगी फिर आ जाऊंगा, लेकिन इंटरनेट का बूम अगर हाथ से आज निकल गया तो बाद में नहीं पकड़ पाऊंगा। वही समय था, वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी से इन्होंने रिजाइन किया और अपनी कंपनी को स्टार्टअप दिया जिसको नाम दिया अमेज़न। साउथ अमेरिका की पॉपुलर रिवर अमेज़न के नाम पे ऑनलाइन बुक्स सेल करने वाली ये कंपनी 97 में ही अपना आईपीओ निकाल दिया, जिसका आईपीओ शुरू में बहुत अच्छा नहीं सर्वाइव किया, बहुत लंबा नहीं चला, शुरुआती समस्याओं संघर्षों को झेलते रहे। ये एकमात्र या कहेंगे कि बहुत ही कम ऐसी कंपनी थी जिन्होंने .com का 2000 का जो क्राइसिस था उसको सह लिया और उसको पार कर गए, और साथ के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हुए नई नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करते चले गए, नई जंप ली। क्विकली आपको 10 ऐसी बातें शेयर करूंगा जिसने जेफ बेजोस को दुनिया से अलग बनाया। पहला पॉइंट क्या है? कस्टमर इज द किंग एंड आई एम द सर्वेंट। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या कहते हैं? कस्टमर राजा है और मैं उसकी प्रजा हूं, और मैं उसका सेवक प्रजा हूं। You can keep this point in your mind. If you find question related to Jeff Bezos in your exam, you can see that he believes that customer is king. और ये कस्टमर को राजा जैसा व्यवहार करके दिखाते हैं। कहते हैं राजा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, जरा ऐसा ही सोचो। दो चीजों का ध्यान रखो, कस्टमर को क्या बहुत पसंद है और कस्टमर को क्या बहुत नापसंद है। ये दोनों चीजों पे बराबर ध्यान देते हैं। क्या, एक बार और सुनिए, कस्टमर को क्या बहुत पसंद है और कस्टमर को क्या बहुत नापसंद है। बहुत पसंद पे तो कई लोग ध्यान देते हैं, बहुत नापसंद को कई बार मिस कर जाते हैं। इसे तीन बातें देखी कि ये तीन चीजें कस्टमर हेट करते हैं। वो तीन चीजें क्या है? डिले, डिफेक्ट और आउट ऑफ स्टॉक। क्या बोले? कस्टमर को लेट माल पहुंचे उसको जमता नहीं है, खराब माल पहुंचे उसको जमता नहीं है, और आउट ऑफ स्टॉक हो गया, माल है ही नहीं, उसको जमता नहीं है। कस्टमर का अटेंशन स्पैन कम है। 0.1% अगर डिले किया वेबसाइट का लोड होना तो 1% कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। एक बार और पकड़िए, सुनिए क्या करें। अगर वेबसाइट 0.1% डिले हुआ तो 1% कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। अगर वेबसाइट लोड होने में 1% डिले किया तो 10% कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। अगर वेबसाइट लोड होने में 10 सेकंड डिले किया तो 100 का 100% कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। ये बड़ा ध्यान रखते थे कि कस्टमर को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। दूसरा पॉइंट है एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। देखिए, अपने एम्प्लॉइज से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और जब बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत डांटते हैं, बहुत काम कराते हैं तो उसके बाद माफी भी नहीं मांगते हैं। थोड़े अलग ही व्यक्ति है। क्या कहते हैं? मेरे 5 लाख एम्प्लॉय हैं, ये मेरे 16 करोड़ कस्टमर का ध्यान रखने के लिए है, क्योंकि हम प्रजा है, कस्टमर राजा है। आज ये दुनिया में सेम डे डिलीवरी को लेकर फेमस हो गए। एक बार और, कम ऑन, सेम डे डिलीवरी को लेकर फेमस हो गए। सुबह ऑर्डर करो, दोपहर का माल घर पे। अरे बाजू वाला राशन वाला भी नहीं दे पाता जो अमेरिका की अमेज़न कंपनी ने दे दिया है। बाजू में राजू स्टोर पे फोन करो, राजू भैया माल भेजना, वो बोलते लड़का नहीं है, कल भेज दूं क्या। अमेज़न क्या बोलता है? हम अमेरिका से बोल रहे हैं, अभी भेजते हैं 15 मिनट में, आधे 1-2 घंटे में। सेम डे डिलीवरी, 1 आवर डिलीवरी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अपने एम्प्लॉइज को बोलते थे और इंप्रूव करेंगे और इंप्रूव करेंगे। तीसरा पॉइंट है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म विजन। देखिए, जब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया ना अमेज़न में, तो वो से प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते थे। वो क्या पूछते थे इससे? भाई जेफ भाई प्रॉफिट कब आएगा? इन्वेस्टर का पूछते थे, जेफ प्रॉफिट कब आएगा अमेज़न में? तो जेफ क्या कहते थे? सुनो सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरा विजन 3 महीने का नहीं, जल्दी का प्रॉफिट नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म विजन को पकड़ के रखना है। ये लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से, 3 साल के प्लान के हिसाब से अगले 3 महीनों को डिजाइन करते हैं। ये छोटे मोटे हर महीने के प्रॉफिट के चक्कर पूरी पृथ्वी को बदलना है। ये विजन में बोलते हैं, आवर विजन इज टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू बिल्ड अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, अ प्लेस वेयर कस्टमर कैन कम टू फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। मेरा अगला पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिफाइंग द सिंपल एंड सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स। देखिए, 2 प्रकार के आजकल एंटरप्रेन्योर हैं। एक किस प्रकार के हैं? जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और इलॉन मस्क। ये कैसे लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हर कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल सा बना के आपको दिखा देते हैं। स्टीव जॉब्स से मिलो, कॉम्प्लेक्स बात को बड़ा सिंपल सा मैसेज कर देते हैं। लोग सोचते हैं यार इसमें क्या खास बातें हैं, इसमें क्या ऐसा क्या बोल दिया इसने, ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पे आप आजकल के नए टेक जायंट्स और नए टेक गुरुज को देखो, वो टेक्नोलॉजी कंपनी चालू करते हैं। वो क्या करेंगे? कुछ बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स दिखाने के चक्कर में वो
बहुत जम्बल्ड हो जाते हैं, एक क्लैरिटी की कमी दिखती है और फोर्सफुल क्लैरिटी की कमी दिखती है। अगला पॉइंट है एवरी एम्प्लॉई हैज अ हिडन ओनर विद इन। जब पहली बार इन्होंने सारे एम्प्लॉय को चिट्ठी लिखी तब केवल 614 एम्प्लॉय हुआ करते थे। आज अमेज़न में 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय है पूरी पृथ्वी पे, और ये क्या कहते हैं, हर एम्प्लॉय के अंदर से एक ओनर क्रिएट कर दो, तभी कंपनी की स्पीड बढ़ेगी, वरना कंपनी स्लो रह जाएगी। नौकर नहीं चाहिए, नौकरी तो नौकर लोग करते हैं, इनको ओनर चाहिए कंपनी में। नेक्स्ट पॉइंट, टेक क्विक डिसीजंस विद 70% इंफॉर्मेशन। बेजोस क्या कहते हैं, जेफ बेजोस कहते हैं कि 90%, 95%, 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का वेट मत करो। 70% इंफॉर्मेशन मिला, कुछ चालू करो, छोटे छोटे टेस्ट करके देखो, मार्केट के सिग्नल्स को देखो, मार्केट फीडबैक देगा, हर फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में बनाओ, लेकिन चालू जल्दी करो, देर मत लगाओ, स्टार्ट फास्ट। उससे क्या होगा, देखिए अमेज़न प्राइम जो उन्होंने सर्विस चालू किया ना, जब उन्होंने इसके बारे में सोचा था, सोचने के 111वें दिन के अंदर लॉन्च करके पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश कर डाला। शुरू में कई तकलीफें आई होंगी, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या, देखिए पहली बार में कोई प्रोडक्ट सफल होता ही नहीं। एक लेसन दे दूं आपको, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट कभी नहीं होता। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर मिस करेंगे तो आपका योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर द फाइनल प्रोडक्ट। उसमें इंप्रूवमेंट साइकिल्स बिल्ड करते रहेंगे। तो क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी शुरू करो। अगर शुरू करने में देर लगाया तो कंपटीशन आपको खा जाएगा, खत्म कर दीजिएगा। अगला पॉइंट, वैल्यू इमिटेशन वर्सेस वैल्यू इनोवेशन। ये बड़ा कमाल का पॉइंट है, ये मुझको बड़ा पसंद है, मेरा फेवरेट भी है। बहुत सारे व्यापारी खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर वैल्यू इमिटेशन में लगे हैं। इसने किया, इसने किया, इसने भी किया, इसने भी किया, अब मैं भी चालू करता हूं, मेरा भी डाल दो, मेरी पत्ती डाल दो, मेरा पैसा लगा दो, यहाँ प्रॉफिट आ रहा है, इसका प्रॉफिट आ रहा है, ये बड़ा आसान है, आदमी तोड़ो, उसका अपने साथ लगा लो, अपना धंधा बड़ा कर लो। दिस इज कॉल्ड वैल्यू इमिटेशन। लेकिन जेफ बेजोस फोकस करते हैं वैल्यू इनोवेशन में। इनोवेशन क्या है, देखिए जब, क्योंकि कस्टमर राजा है, हम प्रजा है, तो राजा को खुश करने के लिए मैं क्या करूं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैल्यू इनोवेशन में जनता ने नहीं बताया कि मेरे को अमेज़न प्राइम चाहिए, लेकिन उन्हें फिर भी बनाया। इसका मतलब क्या है, इनोवेट करके ये फास्ट मूवर बन गए। क्या बन गए, फास्ट मूवर। अमेज़न प्राइम इनकी सफलता के सबसे बड़े कारणों में एक कारण निकला। अमेज़न प्राइम से इनके रिकरिंग रेवेन्यू बिल्ड हो गया, कस्टमर इनके साथ लॉयल हो गया, 1 साल का पैसा देके इनके साथ रुक गया, टिक गया। आप कस्टमर को बढ़िया सर्विस देते हैं, जैसे कि फ्री 1 डे शिपिंग, फ्री सेम डे डिलीवरी इन सम ऑफ द प्लेसेस, एक्सक्लूसिव डील्स फॉर मेंबर्स, अर्ली एक्सेस टू डील्स, वीडियो स्ट्रीमिंग और बहुत सारे सॉन्ग। अगला पॉइंट, डोंट लेट द प्रोसेस किल द प्रोग्रेस। कई कंपनी में इतने प्रोसेस बन जाते हैं, इतने प्रोसेस बन जाते हैं, इतने प्रोसेस बन जाते हैं कि प्रोग्रेस खत्म हो जाती है, कुछ नई चेंजेस नहीं आ पाते। लेकिन जेफ बेजोस क्या कहते हैं, नए आइडिया, नए टेस्ट, नए इनोवेशन, नए मेथड्स, ऑल्टरनेट methods. Let's focus on creativity. Let's focus on new solutions. Let's focus on new ideas. कुछ ना कुछ newness build करने के लिए around the customer's critical success factor, customer को क्या पसंद आए उसके around ये encourage कर रहे हैं। So that encouragement, इससे क्या हुआ, इनकी ब्यूरोक्रेसी खत्म हुई और प्रोसेस तो साथ साथ चलता रहेगा, पर प्रोग्रेस बहुत तेज चला। अगला पॉइंट है 80% प्रोडक्ट एंड 20% प्रमोशन। क्या मतलब हुआ, ये क्या कहते हैं, प्रमोशन पे ज्यादा फोकस मत करो, किसको फोकस करो, बिल्डिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कस्टमर वापस आएगा, 4 को और लेकर आएगा। लेकिन अगर प्रमोशन करते रह गए, कस्टमर उस प्रमोशन के कारण एक बार तो आ जाएगा, अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, ना वापस आएगा, ना किसी और को आने देगा। अच्छा प्रमोशन और खराब प्रोडक्ट, ये दोनों को कॉम्बिनेशन लंबा टिक ही नहीं सकता। अच्छा प्रोडक्ट और कमजोर प्रमोशन, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी दुनिया भर में फैल जाएगा। और 10वां पॉइंट, मास्टर ऑफ फेलियर्स। मास्टर ऑफ फेलियर्स का मतलब क्या है, इन्होंने मास्टरी कर ली फेल करने में। ये क्या कहते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बना के सो जाओ, खतरनाक है, खराब प्रोडक्ट बना के सो जाओ, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। बड़ा सिंपल है, ये क्या कहते हैं, कोर्स करेक्शन। कम ऑन, क्या कहते हैं, कोर्स करेक्शन। टेस्ट करते जाओ और छोटे छोटे फेलियर का रास्ते में कोर्स करेक्शन करते जाओ। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ फेलियर। हो भाई, और फेल हो जाओ, और फेल हो जाओ, लेकिन साथ साथ कोर्स करेक्शन करेंगे, इमीडिएट साथ के करेंगे। ऐसा नहीं है कि फेल हो गए तो बैठ जाओ, हाँ जी फेल हो गए, नहीं नहीं नहीं, साथ कोर्स करेक्शन। अच्छा, इस बार मैं लीडरशिप फनल के बारे में बात नहीं करूंगा। क्या, हाँ, इस बार नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि इस बार मैं 3 विषय में बात करूंगा। एक, अगर आपके पास Yeah, so are you there, class? Yeah, thank you. So, this is what we can learn from the Jeff Bezos and Elon Musk. Still, we do have 5 international, or you can say the global entrepreneur. We are going to talk about that.
And later on we'll go with the local entrepreneurs. Local means you can say the Indian born entrepreneurs. उसके बारे में हम बात करेंगे, but it will be in throughout the session, throughout the semester. So today, anything else that you would like to discuss about the Elon Musk or Jeff Bezos? The stage is open for you. Yes, students. Anything that you want to discuss, that you want to ask, any minor question in your mind, feel free. Because this discussion will help you to grab 15 to 20 marks. Yes, class. बिलियनर मनी अर्न करते हैं वो एक्सपांड कहाँ करते हैं? एक्सपांड की एक्सपेंस मतलब उसका स्पेंडिंग, यू आर आस्किंग फॉर देयर स्पेंडिंग और यू आर आस्किंग फॉर देयर बिजनेस डेवलपमेंट? See, majority they are spending on their lifestyle, but जो भी मल्टी बिलियनर है वो लोग चैरिटी में भी काफ़ी अच्छा पैसा स्पेंड करते हैं चैरिटी में. इफ़ यू टॉक अबाउट द टाटा, आवर ओन एंटरप्रेन्योर, टाटा ग्रुप, टाटा सन्स, if you talk about the Warren Buffett, if you talk about Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, and many more. So, no doubt their lifestyle is too much healthy and heavy. So, they are spending billions of dollars on that. But same time, they are also spending handsome on the charity, on the corporate social responsibilities. If we guys want to plan, want to buy a house, it may be worth rupees 2 crore, 5 crore, 10 crore, that's it. If it is at Rajkot or Saurashtra level, then 20 crore, that's it. If it is related to Maharashtra, 50 crore or so on, and likewise. But they are planning to have a house worth rupees, thousands of crores, like Mukesh Ambani did. अभी मैंने कल ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैं भूल गया. यस, रसिया के जो पॉलिटिशियन है व्लादिमीर पुतिन, उसका जो बंगलो है, महल बोलो, विला बोलो, बंगला बोलो, जो भी बोलो आप, उसकी कुछ मार्केट वैल्यूएशन $1,000 million है, समथिंग लाइक दैट. सो सच पीपल आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन देयर लाइफस्टाइल्स. Okay, class. Yes, which
started a protest over the. Yes, exactly. Yes, Ankita has rightly said, because of his lifestyle only, nowadays Vladimir Putin is in, trouble. People are protesting. Yes, rightly. I appreciate Ankita that you used to upgrade yourselves. That's good. Okay, class. So we'll keep up to this only. That's it for the day. Thank you so much, class. Stay home, stay safe, take care.